to help students transcend the difficulties and uncertainties that are almost inseparable from today's life. Inaugurated on 10th July 2021, it is dedicated to raising human consciousness, promoting selfless service, and facilitating a suitable ambience to the seekers in the quest for truth. ISKCON Youth Forum Delhi is the youth wing of Sri Sri Radha Parth Sarthi Temple, a branch of International Society for Krishna Consciousness, ISKCON. IYF is aimed towards nourishing the hearts of today's youth with the sublime message of the scriptures and helping them flourish in their lives in a wholesome manner. I'd like to present my humble gratitude towards the Honorable Principal, Hansraj College, Professor Rama, for her immense support. I'd also like to present my humble and special gratitude to the Deputy Director of ISKCON Youth Forum, His Grace Arvindaksh Madhav Prabhuji, without whom this could not be a possibility at all. We'll be discussing today Chapter 2, Contents of the Gita Summarized. आज का विषय होगा अध्याय 2, गीता का सार. With this, I invite Umakant Tiwari ji for shloka recitation. Hare Krishna. Shri Bhagavan Uvacha Kutastva Kashmalamidam Vishme Samupasthitim Anarya Jushtamasvargyam Akirti Karma Arjuna. श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हुआ हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Thank you, Umakant. Before moving ahead with the program, I'd like everybody here to keep in mind certain instructions that the feedback form shall be shared in the chat box during the end of the program, and your attendance shall be recorded through the feedback form. So ensure that all of you fill the feedback form. Your attendance shall be recorded through the feedback form. To avail the course certificate, 75% attendance is compulsory, and
Yes, those of you who have not registered for the course until now, kindly register yourself. The registration form link is also given in the chat box, and join our WhatsApp group. I'm really glad to announce that our speaker for today is His Grace Sundar Gopal Das Prabhuji. Prabhuji has done his BTech in Civil Engineering. He's a gold medalist from BITS. He's an MTech gold medalist from IIT Delhi. He has worked as a manager in Larsen and Toubro Limited, Bangalore. He is the director of ISKCON Youth Forum, the chairman of ISKCON India Youth Committee. He's been serving as a Vaishnav monk for last 15 years. We are really honored to have you amongst us, Prabhuji. अब मैं प्रभु जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे आए और आज के सेशन का प्रारंभ करें. Hare Krishna. So thank you so much for giving me this opportunity to share today some thoughts on Bhagavad Gita. Before that, I would like to have a small prayer to all of you. Om Ajnanatimirandhasya Salakaya Churunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Gauravani Nirtesha Shunyavadi Paschatyadesatarune. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So today we are going to discuss the second chapter of Bhagavad Gita. Discussed the first chapter is called Visada Yoga, and second chapter is called Sankhya Yoga. So Visada Yoga means that Arjuna is feeling sorrow. He is very much confused, and he has come with a lot of enthusiasm to fight. Beginning of battle, Arjun wanted to fight. He had no doubt, and he requested Krishna that take my chariot in the middle of the two armies so that I can see, I can oversee the situation of strength of my enemies, who all are there, with whom I have to fight. So that was the purpose. The purpose was not that to give up the fight. Purpose to estimate the strength of the enemy
and then develop your strategy how to combat the enemy. Happened something, and Arjun that the enemies are none other than my friends and relatives, and that becomes a great challenging situation, isn't it? When people am I audible? My voice is clear? Prabhuji, your voice is breaking. Breaking. So here net is, I think some problem is there. Is it continuous breaking or sometime? Now it's okay, Prabhuji. Okay, here in network is little some goes down. Explain. So it is still breaking. Should I speak in English or Hindi? Some requests are coming to speak in here now. All of you can hear. Hare Krishna. Am I audible? Yes, Prabhuji. So I have to switch some because network is weak here. Is it okay? It's okay now? Yes, Prabhuji. Okay. I was just explaining, है ना, कैसे अर्जुन जो हैं वो बड़े दुखी थे, है ना। सिचुएशन ऐसी उनके सामने आती है कि अपने लोग थे, एनिमी कौन थे, उनके अपने लोग ही दुश्मन, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स, दे आर द एनिमी, है ना। सिंपल एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, वेरी क्लोज, लाइक सपोज यू, है ना, और आपके रिलेशन में कोई व्यक्ति आपका क्लोज रिलेटिव जो है, हरे कृष्णा, oh, still breaking. So I think more clarity. हरे कृष्णा. सो प्रभु जी, आप अगर एक बार रीजॉइन कर लेंगे, एक बार लीव करके फिर से रीजॉइन कर लेंगे, देन आई थिंक द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. थोड़ा सा होगा. Okay, let me see.
ओके, सो स्टूडेंट्स तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। प्रभु जी थोड़ी देर में हमें फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, देयर आर सम नेटवर्क इश्यूज, सो नो प्रॉब्लम, ही इज ज्वाइनिंग शॉर्टली। आप सबको कैसा लग रहा है गीता अमृतम कोर्स अटेंड करते हुए? शो मी योर हैंड्स। अच्छा लग रहा है? यस, ओके ओके। काफी सारे चेहरे दिख रहे हैं, यंग स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये अपने आप में एक क्रांति है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतने सारे स्टूडेंट्स बैठ करके, छात्र बैठ करके भगवद गीता पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। तो आप सब आते हैं डेली, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम तब तक प्रभु जी के नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। ओके ओके ओके, कई लोग हाथ उठा रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। आप सब लोग चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कौन कहाँ से है। जैसे कई स्टूडेंट लिख करके बता रहे हैं फ्रॉम आईपीयू, फ्रॉम बिहार। थोड़ी देर के लिए मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ आप सबके लिए, ताकि सबको दिखाई देगा। यस, नाउ यू कैन सी। मथुरा, ओके, इंदौर, हरियाणा। ऐसे पीछे मत देखो, आप आ रहे हो स्क्रीन में। हमारे कंट्रोल रूम के स्टूडेंट पीछे से देख रहे थे क्या हो रहा है, कौन कहाँ से आया है। नो प्रॉब्लम। ओके ओके, मिर्जापुर, वेरी गुड। लखनऊ, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम ऑल्सो फ्रॉम लखनऊ। दिल्ली, कानपुर, महाराष्ट्र, वाराणसी, पठानकोट, वेरी नाइस। हरियाणा, चंडीगढ़, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, केरला, ओहो, फ्रॉम केरला, उड़ीसा। मतलब ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। प्रभु जी फिर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आई विल मेक हिम को होस्ट। यस, Am I audible now? आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस यस प्रभु जी। ठीक है। यस, तो let's hope and pray that this time it goes smooth. ओके, तो अर्जुन की स्थिति है जो मैं बता रहा था आप सबको, है ना, कि अर्जुन जो है वो एक ऐसी असमंजस की स्थिति है, इसको मतलब परप्लेक्सिटी इसमें बोलते। एक तरफ क्या है, धर्म है, और दूसरी आ सकती, और दोनों में अर्जुन फंस चुके हैं, है ना। आज और इस स्थिति में अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी, फियर, इनडिसीजन, क्या करना, to do, what not to do, should I fight, if I go and fight I have to kill my own relatives. That becomes very difficult situation, isn't it? Or someone has done so much for you, आपके लिए कुछ किया है, जिसने बचपन में गोद में लेकर आपको भोजन कराया, जिसने आपको इतना प्रेम दिया, and now you have to fight. Two personalities are very important here. One is Bhishma. Bhishma is fiction, and Drona represents material ambition. कौन है? गुरु चलाना सिखाया, है ना। और आज जिसने हमें तीर चलाना सिखाया, आपको उसी को मारना है, वही व्यक्ति अधर्म के साथ आकर खड़ा है। व्यक्ति ने आप सिखाया, और जिसने बचपन में प्रेम किया, आपको गोद में लेकर, आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको इतना अफेक्शन दिया, लेकिन आज वही व्यक्ति जो है अधर्म के साथ खड़ा है। अगर आप न्याय करते हो तो अपनों को मारना पड़ेगा जिन्होंने प्रेम दिया है।
So justice and affection contradicting together here. Just see. You know, if you follow the law of justice, then of the affection. प्रेम जो है, पारिवारिक प्रेम जो स्नेह है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और अगर पारिवारिक प्रेम को चुनते हैं तो फिर न्याय को छोड़ना पड़ेगा। तो व्हाट टू डू ना, एंड दैट इज द सिचुएशन। फैमिली अफेक्शन, इमोशनल है, रिलेशन में इतनी इमोशंस होती हैं। सारे संसार से आप लड़ सकते हो, लेकिन अपनों से आप नहीं लड़ पाओगे, है कि नहीं? How will you fight with your people whom you have affection for? And that's why you see most of the people succumb to this pressure that is called, you know, family pressure and all this. आज अगर आप वर्ल्ड में आप देखें तो स्टेटिस्टिक्स बताते हैं, इंडिया के स्टेटिस्टिक्स की, एवरी ईयर इन इंडिया, भारत में हर साल 2.5 लाख सुसाइड केसेस होते हैं। एवरी ईयर 2.5 लाख केसेस ऑफ सुसाइड। इनफैक्ट पिछले 1 वर्ष में कोरोना से उतने लोग नहीं मरे जितने सुसाइड से मरे हैं इंडिया में। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस फैक्ट। आप में से कितने लोग जानते हैं इस बात को? कोरोना से जितने लोग नहीं मरे उससे ज्यादा सुसाइड से मर रहे हैं। पर हम इतने चर्चा कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सब कुछ है ना। सुसाइड के लिए भी कुछ मास्क लगाना चाहिए, है कि नहीं? Companies should invent some mask for suicide, isn't it? So what is the mask for suicide? That is Bhagavad Gita. It's a nice initiative, है ना, by Advaita Society of Delhi University, giving society, distributing mask for suicide, not only for, isn't it? If you will never commit suicide in your whole life, you'll never have this kind of situations. और उस सुसाइड 2.5 लाख जो सुसाइड केस होता है ना, 2.5 लाख से 37 फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, फैमिली फाइट, फैमिली क्वारल्स, फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण 37%. It's a big problem, you know. So this is the situation, you know. And remember, this Bhagavad Gita is spoken to whom? ये Bhagavad Gita is the book for the leaders, not people. Always remember. लीडर मीन्स व्हाट? लीडर का मतलब है वो व्यक्ति जिसका एक विजन है लाइफ में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन पीपल एंड लीडर्स? लीडर्स हैव टू द वर्ल्ड। कॉमन पीपल व्हाट द विजन दे हैव? अपना पेट भर जाए बस, दैट इज माय विजन ऑफ लाइफ। दैट मेक्स डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड कॉमन पीपल। लीडर्स दे think for the world. Responsible people who are responsible for the people, है ना? So this Gita is for those people who are going to take up some position for the leadership role. You are a leader, like Dhritarashtra is a leader, isn't it? He is not only a father, but he is there are two situations. Also, and you are a leader also. What will you do? The duty for father and conflicting with each other.
play the role of a father, then you have to protect Duryodhan, isn't it? अगर आप फादर का रोल करते हैं तो दुर्योधन को आपको बचाना है कि नहीं? अगर आप राजा का, किंग का रोल करते हैं तो आपको दुर्योधन को मारना है, सजा देना है. So two roles, person is one, but his like are there. You are one personality but playing so many roles, है कि नहीं? You are, आप एक स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ, यू नो, आप किसी के पुत्र हो, किसी की पुत्री हो, आर प्लेइंग रोल ऑफ सन एंड डॉटर. You are somebody's sister. So one person is playing so many roles. Employee, है कि नहीं? तो एक व्यक्ति सो में इतनी सारी रोल्स निभा रहा है, तो उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, है ना? क्या करेंगे बताइए? हैं? तो कहते हैं कि अगर अजय के सामने भी वो परिस्थिति है कि वो क्या करे, एक राजा का रोल करे या ये देखे कि हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे पिता हैं, मेरे टीचर हैं, या तो इनको मारना है, या एज ए किंग दिस इज माय ड्यूटी टू पनिश एनी क्राइम. Who does injustice must be punished. Doesn't matter whoever he is. है कि नहीं? कल सपोज यू बिकम ए जज और आपके बेटे ने मर्डर किया और आप ही कोर्ट में आ गया, क्या करेंगे? आप उसको फांसी की सजा देंगे? आप में से ज्यादा लोग बोले हाँ हम दे देंगे. बोलना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है कि नहीं? और दूसरों को संदेश देना बहुत आसान है कि हाँ कर देना चाहिए, अपनों को, अपने पराये सब बराबर है हमारे लिए. I only look for the justice, isn't it? But not easy, isn't it? हाथ कांपेंगे उस समय, है कि नहीं? दूसरा होगा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? दूसरा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना कोई होगा, अपना फैमिली का अपना आदमी जिससे हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, तो इतना आसान नहीं होगा. अर्जुन की स्थिति को पहले हमें समझना है कि नहीं? तो इसलिए आप देखोगे जी, अगर जज के घर का अगर केस होगा तो उस जज के अदालत में नहीं दिया जाता है, किसी और की अदालत में दिया जाता है. यूजुअली दिस इज द लॉ, है ना? क्यों? या कोई आईएएस को अपने डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा. द डिस्ट्रिक्ट विच ही बिलोंग्स टू, ही विल नेवर गेट जॉब देयर, अपॉइंटमेंट देयर, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज देयर इज चांस ऑफ बीइंग, है ना, एंड ऑफ डूइंग इनजस्टिस. तो दिस इज द सिचुएशन. आप आज सोसाइटी में इतनी, है ना, क्राइम, करप्शन. अब जो लॉ सबको पता है, many people are corrupt. If you go Data Corruption International says that Data Transparency International का बताता है कि India is the number 1 country in Asia in the field of corruption. Number 1. Who is corrupt? All educated people. अनपढ़ व्यक्ति क्या करप्शन करेगा बताइए? पढ़े लिखे लोग करप्शन करते हैं. 65% police officers are corrupt, according to Transparency International statistics says. Now these all people, they know what is right and wrong, isn't it? They all know. यानी कि ज्ञान नहीं है, knowledge is there, but application is missing. Why? Because of this emotion. You understand? That's where Bhagavad Gita is needed. So if it doesn't matter how
Pandit. He knew Bhagavad Gita, but he could not apply Bhagavad Gita in his own life because application is very difficult, not easy. हम लोग करप्शन के खिलाफ नारे लगाते हैं, है कि नहीं? लेकिन put yourself in the position. आके आया 150 रुपए लेके आया आपके सामने, बोला जस्ट आपको एक सिग्नेचर करना है, ठीक है, और आपको 50, सोचिए आपका पूरा लाइफ मजे में कटेगा, केवल एक सिग्नेचर करना है, दैट्स ऑल. हाउ मेनी पीपल विल बी एबल टू रेजिस्ट दिस? कितने लोग इसको रेजिस्ट कर पाएंगे इस ऑफर को? वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. नॉट इज इजी. बोलना आसान है, बट when you are in the situation, it's very, very difficult. Makes it difficult. What makes it difficult? That question will be asked. अर्जुन पूछेगा ये प्रश्न 3रे अध्याय में गीता के, है ना? गीता के 3रे अध्याय में ये प्रश्न अर्जुन दोबारा पूछेंगे, श्लोक संख्या 37 में, कि व्यक्ति जानता है कि ये सही है, वो ये भी जानता है कि ये नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद व्यक्ति वो गलत काम करता है, ऐसा क्यों? अथकेन प्रयुक्तम पापश्चरति पुरुष अनिक्षणपि वार्ष्ण्य बलादिव नियोजिता. नहीं तो इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्केल पर करप्शन हो रहा है. इट्स नॉट 1 लाख करोड़ रुपीज करप्शन एवरी ईयर इन इंडिया. क्यों? Because not easy. You all are young students. You all are the future leaders. है ना? Somewhere you are going to be leader of the family or somewhere. You all must understand. Knowledge is not sufficient. है ना? केवल ज्ञान से काम नहीं चलता. ज्ञान तो आ जाएगा, लेकिन विज्ञान मतलब application. How to walk the talk, that is very important. That will integrity. How to walk the talk, that is very tough, that is very difficult. एक व्यक्ति बोला, है ना, मेरे को बहुत शराब पीने की आदत है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ शराब. तो हमने बोला शराब छोड़ना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी. बोला कैसे? मैं तो इतने सालों से ट्राई कर रहा हूँ, आज तक नहीं छोड़ पाया. बोला बहुत आसान है, आप मुट्ठी बांधो. सब लोग मुट्ठी बांधिए, अपना मुट्ठी, ओके, और खोलिए, मुट्ठी खोल दीजिए. मुश्किल हुआ कुछ खोलने में मुट्ठी? बहुत आसानी से आपने खोल दिया, है ना? तो जितना मुट्ठी खोलना आसान है, उतना ही शराब छोड़ना आसान है. बोला ऐसा कैसे? हम तो इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा. बोला जैसे ही शराब की बोतल आती है मुट्ठी में, मुट्ठी खोल दो, शराब गिर जाएगा नीचे, टूट जाएगा, बोतल खत्म. बोला बढ़िया आइडिया है. वैसे मुट्ठी खोलना बहुत आसान है, लेकिन शराब की बोतल हो हाथ में, उस समय मुट्ठी खोलना बहुत मुश्किल है. इजंट इट? वेरी डिफिकल्ट. अभी तो आप लोगों ने ऐसे खोल दिया, बहुत आसानी से खोल दिया, लेकिन जब आपके हाथ में कोई ऐसी वस्तु हो जो बहुत आपको प्रिय हो, जिसके बिना जी नहीं सकते, उस समय उसको छोड़ना बहुत मुश्किल काम है. इजंट इट? वेरी डिफिकल्ट. जैसे कोई फोर्स है जो आपके हाथ को पकड़ के दबा रहा है, नहीं, आप चाह रहे हो छोड़ना, लेकिन वो छोड़ने नहीं देता है. वो नहीं छोड़ने देंगे, ऐसे थोड़े छोड़ने देंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन. अर्जुन का समझने का प्रयास कीजिए आप सब. और वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है कि मुट्ठी को इतना मजबूत कर देता है जब शराब की बोतल आती है हाथ में, कि खोलने नहीं देता है. हम जानते हैं कि सिगरेट जो है इंजुरियस फॉर हेल्थ, इट्स रिटन देयर, इजंट इट? पर इंडिया में 27 करोड़ इंडिया में 27 crore people, they smoke every
डे। हर एक दिन में 8 सिगरेट हर आदमी पीता, मतलब 215 करोड़ सिगरेट डेली इंडिया के लोग कंज्यूम करते हैं। 215 करोड़ सिगरेट। और पूरे साल में, एक साल में 8 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट पीते हैं इंडिया के लोग। कितना? 8 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट। और 15 लाख लोग सिगरेट पी के मरते हैं हर साल। कोरोना से अभी तक 5 लाख लोग मरे, लेकिन 2 साल में, लेकिन सिगरेट पीने से हर साल 15 लाख लोगों की मृत्यु होती है इंडिया में। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। We are paying to buy poison, isn't it? And then we are drinking, smoking, है कि नहीं? 8 लाख करोड़ कम नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा एजुकेशन पे खर्चा करते हैं भारत के लोग, ताकि इंडियंस का एजुकेशन स्ट्रांग हो जाए, गीता का कोर्सेज कराया जाए अच्छे से स्केल पे, तो ये सब पैसे बच जाएंगे, लोगों के हेल्थ भी ठीक रहेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा, है कि नहीं? But that should not, that not the priority, that is the problem. तो इसलिए चैलेंज पता है what is right and what is wrong, still फिर भी हम लोग क्या करते हैं? हम करोड़ लोग, नॉट 1 2, 27 करोड़ लोग फंसे हुए हैं उस चीज में जो खतरनाक है हेल्थ के लिए, एंड दे नो इट दैट दिस इज नॉट गुड। जस्ट इमेजिन। एंड 65% पुलिस इज करप्ट, knowing that this is wrong, है ना? तो इसको कहते हैं मोह। क्या कहते हैं? मोह। भगवान बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या ध्यान से पढ़िए? इस सेकंड चैप्टर को समझने से क्या फायदा होगा आप जानते हैं? एक लाइन में आपको बता देता हूं पूरे सेकंड चैप्टर का सारांश। रेडी टू लिसन? आप बताऊंगा, समझ लोगे। अगर सेकंड चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए स्टोन नहीं रहेगा। देखते हो तो आप में से कितने लोग चुरा लेते हैं उसको? कोई उठाता है स्टोन को? नहीं उठाते ना? कोई नहीं उठाएगा। अच्छा, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो और गोल्ड पड़ा हुआ है, 5 केजी गोल्ड, क्या करेंगे? उठा लेंगे ना? इसका मतलब अभी जो हमारी स्थिति है उसमें हमारे लिए दोनों समान नहीं है, लेकिन गीता अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए गोल्ड और स्टोन में कोई अंतर नहीं है, दोनों को आप समान दृष्टि से देखेंगे। पर द्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। चाणक्य पंडित ने कहा है कि दूसरे की पत्नी को मां के समान देखना और दूसरे की धन को मिट्टी के समान देखना, पत्थर के समान देखना। दूसरे के धन को जब नजर पड़ती है तो पत्थर दिखना चाहिए, ये पत्थर है, मेरे किसी काम का नहीं है कि नहीं? और आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारे जीव अपने समान देखना, सारे जीवों को अपने समान देखना कि जितना पेन एंड प्लेजर मुझे होता है जीव, बकरी, आज लोग गाय की हत्या करके देखते हैं कि मार फ्रीडम है। पॉइंट डोंट यू फील द पेन which the cow is feeling? That is the point. How can you be so hard-hearted?
You have got a heart, not feel the pain of the enemy. People, लोग दिवाली में पटाखे चलाने से मेरा कुत्ता डर जाता है कि नहीं? लेकिन गाय काटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुत्ता के डरने से प्रॉब्लम, लेकिन गाय काटने से इतने दर्द होता है उसे प्रॉब्लम नहीं है. What kind of this duplicitous society we are living in, isn't it? Difference क्या होगा? It's okay. I know. कुत्ता और गाय में कोई डिफरेंस है? Both are the soul, isn't it? दोनों में आत्मा है, दोनों को पेन एंड प्लेजर फील होता है. So just see the situation. So आत्मवत् सर्वभूतेषु, इस सारे लोगों को, मैं आप में से किसी को कोई गाली दे तो कैसा लगेगा आपको, ये बताइए, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना. तो जो काम दूसरा व्यक्ति आपके साथ कर, बुरा काम उसको बुरा नहीं लगेगा? Does it require PhD to understand? It is common sense, isn't it? That what behavior hurts you, why do you do the same behavior to others? Why can't you understand this much? We understand, but again प्रॉब्लम ये है कि हम उस समय हम अपनी इमोशंस को कैसे संभालें. हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन व्हाट इज कैरेक्टर की, हम जानते हैं कि गलत है, गलत करने की पूरी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, पकड़े भी नहीं जाएंगे, उसके बावजूद गलत नहीं करना, दैट इज कैरेक्टर, है कि नहीं? That is correct. Just imagine going, all of you, young boys. I was going through statistics of National Crime Record Bureau. National Crime Record Bureau. It says in India, 66 lakh crimes has been committed. 6 lakh, not 1, 2. Who? People who are educated. What is the use of such education? So much competence without character. Competence without character is more dangerous than competence with no competence at all. Who is more dangerous? Active fool or lazy fool? Who is more dangerous? You can write in your chat box. Active fool is more dangerous than lazy fool, because if he is lazy, even if but one, then he can do so much damage because he is active. So somebody who is competent but has no character is more dangerous than a person who has no competence and no character. So you all students are very brilliant students. I know Delhi University में सारे और बाकी सब भी ब्रिलियंट है, सब लोग हैं. But you have very fertile brain, very fertile, good intelligence. This is mercy of God that you have all these things. But you have to learn how to, you have to have this character. Otherwise, how will you handle this?
Tomorrow some of you will become IAS officer. आपने कोई ऑफिसर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, to become something. ये समझना चाहिए. You have to learn this also. It's a worrisome situation actually. 66 lakh is not a small number. In 4.5 करोड़ केस तो कोर्ट में पेंडिंग में है इंडिया. Pending in India. And नहीं, कुछ दुख का समाचार भी सुनाऊंगा आपको. आपके देश में जितने प्रिजन हैं वो हाउस, आज प्रिजन ऑक्यूपेंसी इज 118%. 118% प्रिजन ऑक्यूपेंसी, मतलब कि जहां 100 लोगों को रखने की जगह वहां 118 घुसे हुए हैं. फ्लडिंग प्रिजन्स इन इंडिया. 70,000 कैदियों के लिए भारत जेल बनाया गया है, पूरे इंडिया की बात करें, और 5,10,000 कैदी. जस्ट इमेजिन 4.5 करोड़ केस अगर सॉल्व कर दिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ये लोग, इनके लिए जगह कहाँ बचेगी. इसलिए केसेस जाता है, क्योंकि अगर सॉल्व कर भी दिया जाए, और बेल क्यों जल्दी मिलती है, इसलिए मिलती है कि कहाँ रखेंगे जेल में. जेल में रखने का जगह दो, इजी है. क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है जेल में. जेल मेंटेन करने के लिए 7,000 because people are not educated properly. And what is Chanakya Pandit after me? दूसरे की पत्नी को मां के समान देखो. This one sloka is more important than entire so many universities. If this one sloka people don't understand, all this is useless. It is going to create more havoc, chaos in the society. इससे और समस्याएं बढ़ेगी समाज की. इसलिए ये एजुकेशन बहुत जरूरी है. That's why we are taking this initiative. ये इनिशिएटिव हम लोग इसीलिए ले रहे हैं ताकि आप सब है ना इसको समझ सकें. तो गीता को समझने से क्या, गोल्ड और स्टोन में कोई अंतर नहीं. You have to become like that. You have to become like that. Please don't get attracted to gold. Get attracted to character. Isn't it? Principles can assure you 100 with 100. I can say to all of you, मैं आप सबको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आप सिद्धांतों पे चलना सीखो, आप जीवन में ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा खुश रहोगे. इंटरव्यू देखिए, जितने बड़े बड़े सीईओ हैं, they are not cheap people. They have character. जिस दिन उनका कैरेक्टर खराब हो जाता है ना, Bill Gates, you see, lost all his image. He was forced to leave Microsoft because he could not follow one line of Dareshim Matriya. So what is the use of so much wealth and knowledge? Better to, ये भी बहुत important education, बहुत important.
तो ऐसा कैसे होगा? कोई लोग पूछते ऐसा कैसे हम, मतलब गोल्ड और स्टोन को हो सकता है क्या? संभव हो सकता है क्या? हो सकता है, जरूर होगा, इफ यू अंडरस्टैंड गीता। कैसे? सो विल डिस्कस नाउ। सेकंड चैप्टर गीता कहती है, भगवान शुरू में ही अर्जुन को बताते, अर्जुन सबसे पहला चीज, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है? सबसे पहला चीज तुम शरीर नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। गोल्ड स्टोन दोनों आत्मा के लिए समान है, और मृत्यु के समय लेके जा पाओगे ना स्टोन लेके जा पाओगे, सब यही रह जाएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे और उन्हीं का हिस्सा। गोल्ड यही है और तुम्हारा हिसाब जरूर होगा, का हिसाब जरूर किया जाएगा। ये मत सोचो कि कौन देखता है, कौन देख रहा है हमको। ईश्वर देख रहा है। Godlessness is the biggest problem of the century. Very dangerous. Atheism is the cause. People should become caring. They should know that there is God who is watching you, sir. Don't think that nobody is watching you. Don't think like that. ऐसा मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा है आपको। कौन गवाही देगा मेरी? गीता के 13 अध्याय सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। कृष्ण 18वें अध्याय में बताते हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ परमात्मा के रूप में। सीसीटीवी में अलग से लगाने की जरूरत नहीं सरकार को। सरकार अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने सरकार को छोड़ काम। He is there in your heart, watching everything. कृष्णा बताते मैं बैठा रहता हूँ, इंटरफेयर नहीं करता हूँ लाइफ में। जैसे सीसीटीवी इंटरफेयर नहीं करेगा, बस रिकॉर्ड करेगा, दैट्स ऑल। सीसीटीवी बोलता नहीं है कि भाई मत करो, क्यों कर रहे हो, गलत है, नहीं। तो परमात्मा क्या बैठ के देखता रहेगा, ठीक है, रिकॉर्ड करते रहो इनका सारा, है ना। अच्छा बुरा नहीं बोलेगा, कुछ करेक्ट नहीं करेगा। करेक्ट कौन करेगा? करेक्ट करेंगे एजुकेटर्स की जिम्मेदारी है। दैट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ा है। अब बताओ, मैं जो बात बता रहा हूँ, sometimes people say science says God नहीं है। Science doesn't prove God, but science doesn't disprove God also. If you blindly, people say, I cannot accept God blindly. You cannot accept God blindly, but then you cannot reject God also blindly. Reject God blindly. If I want to reject Einstein theory, मैं बोलूंगा I don't accept Einstein theory, तो आप क्या पूछोगे, आपने आइंस्टीन थ्योरी पढ़ा है क्या? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है, but I don't accept Einstein theory.
आप क्या बोलोगे? दिस इज ब्लाइंड रिजेक्शन, इजंट इट? सिमिलरली आप बोलते आई डोंट एक्सेप्ट गॉड। भाई आपने गीता पढ़ी है क्या? नहीं, गीता नहीं पढ़ी कभी। देन हाउ कैन यू रिजेक्ट गॉड? ब्लाइंड रिजेक्शन। Without studying properly, without implementing the principles in your life, without applying, if you reject, this is blind rejection. चलो फिर भी रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट करके डिज्नीलैंड बना दो तो एक अच्छी बात है। डिज्नीलैंड बना दिया, सब मजे में है, आनंद ही आनंद है, हमने भगवान को भगा दिया, हम बड़े मजे में जी रहे हैं, तो वो अच्छी बात, हम भी खुश हो जाते, हम भी मजे लेते। लेकिन भगवान को भगाने के बाद भी तो आपका समाज में देखो दुख बढ़ता ही जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पीपल आर बिकमिंग मोर गॉडलेस। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट में, इस साल की रिपोर्ट बता रहा हूँ, इस साल नहीं हर साल की रिपोर्ट में बताया जाता है कि क्राइम इतने क्यों हो रहे हैं इंडिया में। इसका कारण लिखा गया क्योंकि भारत के लोग की विवेक शक्ति नष्ट होती जा रही है। विवेक शक्ति का मतलब अच्छा और बुरा में भेद करना लोग नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, पीपल आर नॉट एबल टू डिसाइड। कोई बताता ही नहीं, ये करो, आपको जो अच्छा लगता है। कोई यार्ड स्टिक नहीं है, पीपल डजंट नो। संविधान कितने लोगों ने पढ़ा है इंडिया में? कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है? इसमें क्या गलत है, क्या संविधान में लिखा हुआ है, पर संविधान के सिद्धांतों को कितने लोग फॉलो करते? मुझे लगता है जो संविधान बनाते वो भी फॉलो नहीं करते ठीक से। भाई इट्स नॉट whatever you say, है ना, follow this, it's not easy. उसकी फॉलो करने के लिए you have to train how to do that. Start with understanding we are not this body, we are soul. आप देखो जितना एक्टिविटीज हम कर रहे हैं पूरे जीवन में, क्या कर, कोई व्यक्ति करप्शन क्यों करता है? सिंपल एग्जाम्पल आपको बताता हूँ क्यों करता है, बताइए। करप्शन इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि बहुत सारा सामान मैं खरीद लूं, बहुत प्रॉपर्टी मेरे पास हो जाए, बहुत पैसा मेरे पास आ जाए। उसे क्या करेगा? किसको खुश करेगा? अपने शरीर को पे खर्च करता है ना, आत्मा पे थोड़े लगाता है। किस पे लगाएगा वो पैसा? है शरीर पे लगाएगा ना। आप शरीर पे कितना भी पैसा लगा दो, हैं, आप खुश थोड़े हो जाओगे। इट्स जस्ट लाइक मोमेंटरी प्लेजर, दैट्स ऑल। केवल शरीर को ध्यान रखते हैं लोग। आप जितना सब कुछ काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। आजकल लोगों को एजुकेशन, अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन का गोल एजुकेशन नहीं है, पैसा कमाना हो गया। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा जरूरी नहीं, पैसा जरूरी, दैट्स द गोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन होना चाहिए क्या? एक पर्सनालिटी को बिल्ड करना है कि नहीं, एक व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए, दैट शुड बी द गोल ऑफ एजुकेशन। आज गोल ऑफ एजुकेशन क्या है? जस्ट मनी मेकिंग मशीन, मनी मेकिंग मशीन। क्या करेंगे आप? पैसा खाएंगे? will you buy, how many of you will buy your mother with money? With money, with money. Just for the people are buying everything. They can buy everything with the money. I can buy with money everything. Everybody is after money. No. Why? Because people are thinking that I have got one life,
चुके हैं। मृत्यु के समय केमिकल सब जल मर के खत्म हो जाते हैं। हम कोई जीवन, एक ही जीवन है, पाप करो जो भी करो, मजे करो, eat, drink and be merry. There is the philosophy, isn't it? किसका नुकसान हो रहा है भाई? हम केमिकल है, केमिकल में छुरा मार दिया, दूसरा केमिकल घुसा दिया, क्या फर्क पड़ता है आपको? टेंशन में क्यों ना? We all are just chemical, है कि नहीं? हम कुछ नहीं है। डार्विन थ्योरी से we are made of chemicals. तो केमिकल क्या है? केमिकल में एक दूसरा केमिकल घुसा दिया, चाकू, आयरन। आप मेरे को सजा क्यों दे रहे हैं? Isn't it? All just nothing but transformation of chemicals. Some chemical secretion happening, hormone secretes, and then we feel emotion. It's all chemical, isn't it? तो क्या होता है? पहले आप उदास होते हैं, उसके बाद आंसू आता है, पहले आंसू आता है, फिर आप उदास फील करते हैं। First you feel sad, then comes tears, or first comes tears, then you feel sad. So tears cannot be the cause of sad. You cannot feel sad. No, this is wrong understanding. So hormones cannot be the cause of emotions. Emotions are the cause of hormones. What is difficult to understand? So emotions comes before hormone comes. But where from emotion comes? That so it says that we are not this simply chemical. We are the soul. And that's what Krishna says in second chapter बता रहे भगवान कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और शरीर को बिल्ड देखकर हम स्वार्थी हो जाते। The moment you think your body, you become lusty. Because मैरिज होता है तो क्या देखते हैं? एक गर्ल कितनी सुंदर है, वो दिखाओ, फोटो दिखाओ उसका। हाउ ब्यूटीफुल इज द गर्ल। हर हम बोलते हम काले गोरे में भेद नहीं करते। कैसे है लड़का? doing discrimination. Isn't it? So the moment you are looking at body, then lust comes. Lust, greed also comes because you need money. You become self-conscious, body conscious. So whatever is this is my body, and this is mine. This is me, and this is mine. So me and mine. मेरा हूँ, मेरे लोग हैं, और मेरी जिम्मेदारी एक ही कि मैं और मेरे लोगों को केयर करना। दैट्स ऑल। उनके इंद्रियों को संतुष्ट करना। इंद्रियों को संतुष्ट करना, केयर का मतलब इंद्रियों को संतुष्ट करना। दैट्स ऑल। इंद्रियां, सेंसेस, फाइव सेंसेस, जस्ट ट्राइंग टू ग्रेटिफाई सेंसेस। दैट्स ऑल। हमको आज मन कर रहा है शराब पीने का, हमको आज मन कर रहा है पिज्जा खाने का, लेकिन नहीं, हम तो खाएंगे 5 लाख रुपए का, बड़ा मजा आएगा। लेकिन कोई बच्चा गरीब है रोड पे, है ना, भीख मांग रहा है, हमको पिज्जा देख के हमारे जीभ पे लार आने लगता है कि नहीं? लेकिन एक गरीब बच्चे को देखकर आंखों में आंसू नहीं आते हैं कि कैसे इस बच्चे को हम हेल्प कर सकते हैं। जो 5 लाख रुपया मैं आज होटल में खर्चा करने जा रहा हूँ, कहाँ पे? सिंगापुर में, सिंगापुर के बीच पर। उस 5 लाख रुपए से मैं ये जो गरीब बच्चे हैं इनको कुछ हेल्प, फीलिंग, where is that feeling? So focused about own. We are we become that we become self-centered.
ऑलवेज रिमेंबर, वी बिकम सेंटर्ड, अपनी खुशी, स्वार्थ जिसको बोलते, क्या बोलते, स्वार्थी हो जाएंगे हम, है ना, अपने शरीर के लिए, है ना, अपने शरीर को सजाना है, ये करना है इसको। वी शुड केयर फॉर द बॉडी, वी शुड केयर सर्टेनली, बॉडी का टेक केयर नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट वी शुड नॉट unnecessarily waste the resources for the body, because ultimately this body is going to die. आप कितना भी खिला दो बॉडी को, थोड़े ना, है ना, आप बचा पाओगे, मरना तो है ही इसको। एक व्यक्ति मेरे से बोले, आप नौकरी छोड़ दिए, आप स्पिरिचुअल एजुकेशन में चले गए, आप संत बन गए, मॉन्क बन गए, तो आपको खाना कौन खिलाएगा? हम बोले, आपको जो खिला रहा है हमको भी खिलाएगा? बोला, हम तो काम करते हैं तो हमारी कंपनी खिलाती है। बोला, हम कौन सा काम नहीं करते, हम भी बहुत काम कर रहे हैं, है कि नहीं? आप फिजिक्स पे लेक्चर देते हो तो आपको 70,000 सैलरी मिलती है, हम गीता पे लेक्चर देते तो कुछ काम का नहीं है। आई एम ऑल्सो ए लेक्चरर, आई एम ऑल्सो एजुकेटर, only thing is subject is different, isn't it? Subject is different, that's all. It's not that the subject is different, the more important so isn't Gita useful? Very, गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। मेरे आप मान लो भगवान, मैं बोला भगवान सारी दुनिया मेरे को नहीं खिलाएंगे, यहाँ तो जो गाली देता है उसको भी खिलाते हैं भगवान, तो क्या जो व्यक्ति उनके लिए अपना जीवन डेडिकेट किया उनको नहीं खिलाएंगे? बोल रहा है नहीं, अगर भूल गए तो, मान लो भगवान भूल गए तो, मतलब भूल गए तो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा मर जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बोला अंतर बस तो नहीं है ना कि आप खाओगे तो मरोगे नहीं, मरना तो सबको है, क्यों ना सही रास्ते पर चलकर मरे, है कि नहीं? इस और नो, सही रास्ते पर चल के मरो, जब मरना ही है तो क्यों ना सही रास्ते पर चल के मरे। सो दैट इज भगवद गीता। गीता कहती है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आपकी मृत्यु नहीं होगी। कई लोग सुसाइड करते, सोचते हैं हमको बहुत दुख है, मर जाएंगे तो दुख से मुक्त हो जाएंगे, गलत बात है। आप मरोगे ही नहीं, सबसे पहले तो गीता बोलती है आप मरोगे ही नहीं। मृत्यु के समय बदलती है, आत्मा केवल शरीर बदलती है। कई हम लोग मर जाते हैं, सब कुछ जला उला दिया जाता है, तो फिर कई देखते कि कई बच्चे पिछले जन्म की याद उनके अंदर रहती है। देयर आर सो केसेस, पुनर्जन्म के केस। एक प्रोफेसर है यान स्टीवेंसन, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट वर्जीनिया के प्रोफेसर हैं यान स्टीवेंसन। प्रोफेसर यान स्टीवेंसन ने 30 इयर्स तक रिसर्च किया इसके ऊपर, इनकार्नेशन के ऊपर, और उन्होंने 3000 केस ऐसे उन्होंने रिसर्च किए जो पुनर्जन्म के थे। पुनर्जन्म का केस का मतलब है कि कोई बच्चा को उन्होंने स्टडी किया जिसने अपने पिछले जन्म को याद करता था कि पिछले जन्म में उसने क्या किया, उसको याद है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जन्म लेते ही बताया कि पिछले जन्म में मेरा मर्डर और लाश को जमीन में गड़ा, कहाँ थी, यहाँ तक कोर्ट में जाकर गवाही दिए है लोग, और वहां से हथियार बरामद हुआ, उसकी लाश मैसेज हुए हैं, कोर्ट में हियरिंग हुई है, बेसिस ऑफ एविडेंस बेसिस सच केसेस। तो प्रश्न उठता है कि भाई जब जला उला दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तो ये मेमोरी कैसे शिफ्ट हो गया है? कोई तो मेमोरी ऐसे ही हो गया, क्लाउड में मेमोरी सेव हो जाता है कि नहीं?
भाई आप अपने स्मार्टफोन का सारा मेमोरी कहाँ रखते हो? क्लाउड में रखते हैं, अपना जीमेल बना देते हैं और जीमेल पे सारा डाटा रहता है। और जैसे ही आप नया स्मार्टफोन लाते हो, जीमेल का आईडी डालते हो, सारा डाटा उस पर आ जाता है। दैट ऑप्शन इज देयर, isn't it? Even today it can be done. So similarly there is subtle science जो भगवद गीता में बताया गया है। क्या? सटल साइंस। 3 तरह के शरीर हैं हमारे, गीता में बताया गया है। हम एक शरीर नहीं है, हमारे 3 शरीर हैं हमारे अंदर। ध्यान से सुनिएगा। पहला शरीर जो आप मिरर में देखते हो, पहला शरीर जो आप देखते हैं, ये हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर। एक इसके अंदर शरीर है जो सॉफ्टवेयर है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, स्थूल बॉडी एंड सूक्ष्म बॉडी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। सटल बॉडी के अंदर भी सेंसेज हैं। जैसे आप किस आंख से देखते हो, है कि नहीं? दीज आईज आर देयर, आंखों से ऐसे देखेंगे, है कि नहीं? लेकिन बिना आंख के भी आप देख सकते हो। आप जानते हैं कैसे? यू कैन सी विदाउट आईज। यू ऑल कैन क्लोज योर आईज। आप सब अपनी आंख बंद करो, आपको अभी मैं दिखाता हूं बिना आंख के। ओके, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब बताइए मैं कौन से कलर का जैकेट पहना हूं? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। जब आपकी आंख बंद है, आप जैसे ही पूछा मैं कौन से कलर का जैकेट पहना हूं, आपकी आंख बंद है, लेकिन मन की आंख पे एक तस्वीर उभरती है जिसको आप मन की आंखों से देखते हो, है कि नहीं? यस और नो? मतलब अंदर एक व्यक्ति जिससे कि आंख बंद करके भी आप एक कलर दिखाई दे रहा है। आप रात में सो जाते हो, सपने देखते हो ना, आंखें तो बंद रहती है, तो कैसे देखते हो? यस और नो? भाई आंखें तो बंद रहती है तो देखते हो। सपना देखा आज मैंने, भाई आंख तो बंद थी, कैसे देखा? इसका मतलब अंदर आंख है, वो आंख सूक्ष्म शरीर उसको बोलते हैं। गीता में बताया गया है दैट इज सटल बॉडी मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। दैट इज गीता। तो जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, इस शरीर को जला देते हैं। गीता कहती है कि ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, उसको जलाते हैं, लेकिन जो सटल बॉडी है, जो 3 चीजों से मिलकर बना है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, दे आर सटल, दे डोंट गेट डिस्ट्रॉयड। आग उसको जला नहीं सकती है। जैसे आग लगा दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आग नहीं जला पाएगी, है कि नहीं? आप कमरे में बैठ जाओ और चारों तरफ आग लगा दो, फिर भी मोबाइल का सिग्नल आएगा, है कि नहीं? मोबाइल का सिग्नल को आग नहीं जला सकती है। ये सब बिकॉज इट इज सटलर देन फायर। यू गॉट द पॉइंट? आग भिंगा भी नहीं सकती है? पानी में भी आप घुस जाओ और मोबाइल ले लो, अगर वाटर प्रूफ मोबाइल, तो पानी में भी आप उससे बात कर सकते हो, ये सब। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन पेनिट्रेट वाटर। सो उसी तरह से जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो मृत्यु के समय नहीं नष्ट होता है। वो क्या होता है, उसमें डाटा होता है। क्या होता है? डाटा होता है, स्टोर होता है सारा। जैसे ही दूसरे से आत्मा प्रविष्ट करती है, वो डाटा फिर से अपलोड हो जाता है वहां। इट्स देयर। पिछले सारे जन्मों के, पास्ट लाइफ के सारे मेमोरीज हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रखा रहता है। बट some people can do that, some people cannot. कुछ लोग उसको रिकवर कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ बच्चे रिकवर कर पाते हैं तो बताते हैं, है ना? तो ये है। और एक तीसरा बॉडी क्या है, जो स्पिरिचुअल बॉडी है, जिसको बोलते हैं सोल। दैट इज द मेन थिंग। नष्ट नहीं, तो वो आत्मा जो है अमर है। गीता में भगवान ने बताया, न जायते नायं भूत्वा भविता शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि न तो आत्मा का जन्म होता है, न आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा क्या है? अमर है।
केवल बदल लो, लेकिन आप उस पर अपना ईमेल आईडी डाल दो तो फिर से आपका बोलते हैं नया ये मेरा स्मार्टफोन है, सेम डाटा आ जाता है उस पर, isn't it? You have changed your smartphone but not your data. You are the same. Your phone is same which was earlier, isn't it? That's all. और यही नहीं है, एक एक जैसे एक मोबाइल में कई सारे सिम आ सकते हैं, उसी तरह से एक शरीर कर सकती है. Many souls can enter in one body. That is also there, and they can live together. How? ऐसे उसी तरह से सिम कार्ड एक ही स्मार्टफोन के अंदर, जस्ट आपको ऑप्शन आता है सिम किससे आपको बात करना है, जो क्लिक कर देंगे उससे शुरू हो जाएगा बात होना. उसी तरह से so many souls can live in one body. इसलिए जब किसी को भूत पकड़ लेता है तो भूत क्या, उसके शरीर में दूसरे की आत्मा जाके घुस जाती है, and that's how that soul dominates the other one. तो जब व्यक्ति बोल देगा तो कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि कब कौन आत्मा बोल रही है, आपको पता नहीं चलेगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा. कल तो ये बहुत बढ़िया बात कर रहा था, आज ऐसा कैसे बात कर रहा है, आपको लगेगा कि वही बात कर रहा है, लेकिन देयर आर टू पीपल इनसाइड. एंड कई बार लोग बोलते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. समटाइम इट नॉट डिसऑर्डर, दो व्यक्ति अंदर होते, कौन डेथ है तो ओनली वी लूज और ग्रॉस बॉडी नॉट. जो भी हमने कर्म किए हैं वो संचित रहते हैं, दे आर स्टोर्ड इन द सटल बॉडी. और अगला जीवन जो होता है, अगला जीवन होता है वही से शुरू करते हैं. अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है ये सोच के कि मेरे दुख नष्ट हो जाएंगे तो गलत. दुख केवल एक तरीके से नष्ट होंगे, आप जानते हैं कैसे? दुख नष्ट होंगे अपने विचारों को स्पष्ट करने से. विचार को शुद्ध कीजिए. विचारों से क्या शुद्ध होगा? व्यवहार. व्यवहार से कर्म शुद्ध होंगे, कर्म से फिर भाग्य शुद्ध होगा, फ्यूचर आपका सिक्योर होगा. अब विचार कैसे शुद्ध होंगे? विचार शुद्ध होंगे ज्ञान से. जो ज्ञान, गीता से ज्ञान मिलता है, गीता के ज्ञान से विचार शुद्ध होते हैं. तो जब गीता का ज्ञान हमारे जीवन में आएगा, अब हम समझ पाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं. फिर शरीर के लिए हम क्यों टेंशन लें, शरीर के लिए क्यों पाप करें, है कि नहीं? जो एनीवे नष्ट होना है कि नहीं? हम कितना भी खा ले, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, और फिर अगले जीवन में जो पाप हैं हम करते हैं वो हम इसको लेके जाएंगे. तो इससे क्या होगा? अगला जीवन हमारा फिर से डिसाइड होगा कि हम किस प्रकार का शरीर मिलता है. अगर इस जीवन में अगर किसी ने गलत किया है तो अगले जीवन में उसको दुख मिलेगा. अगर इस जीवन में किसी ने अच्छे आचरण किए तो अगले जन्म में उसको अच्छी व्यवस्था मिलती है, अच्छा माहौल मिलता है. अदरवाइज आप देखो कोई एक ही है कि नहीं, एक जो है होदू. हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? पेरेंट्स आर सेम. So Gita says it is because of karma. कोई व्यक्ति कोई पूछ सकता है कि भाई एक जन्म में कर्म किया तो अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में मिल जानी चाहिए सजा. सुनो, दिस इज नॉट द प्रोसेस. जस्ट लाइक अगर आप पिछले साल आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई, इस साल आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से, तो एक साल तो एग्जाम जब होगा तो आप टॉप कर गए, है कि नहीं? तो इस साल अगर आपने अच्छा से पढ़ाई किया तो इस साल आप टॉप नहीं कर पाओगे, टॉप करोगे, अगले साल आप टॉपर बनोगे. यस और नेक्स्ट ईयर में यू विल बी टॉपर, नॉट दिस ईयर. और अगर अगले साल एक बार आप टॉप कर गए, साल तक आप टॉपर बने रहेंगे चाहे आप पढ़ाई करें या ना करें. यस और नो?
तो अगले साल कोई व्यक्ति टॉप कर गया, बोला अब तो मैं टॉप कर गया, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, तो वो पढ़ाई नहीं भी करेगा तो 1 साल तक वो टॉप बना रहता है कि नहीं? 1 year he will remain top। और 1 साल के बाद फिर क्या होगा? जब एग्जाम होगा तो फिर वो फेल हो जाएगा, फिर अगले 1 साल तक फेल रहेगा, चाहे कितना ही पढ़ाई करे। अगले साल बोलेगा अरे मैं तो इतना पढ़ाई कर रहा हूं फिर भी मेरे को लोग फेल बोल रहे हैं। यस, 1 year you will remain fail till next exam, चाहे कितना भी आप पढ़ाई कर लो। अब एग्जाम में ही मौका मिलेगा दोबारा आपको पास होने का, एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। होल लाइफ इज प्रिपरेशन। तो पूरे जीवन अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो हमारा अगला जीवन है। जन्म पुनर्जन्म पे इतने रिसर्च हुए हैं, इतने केसेज हैं कि अगर उसके बाद भी अगर कोई बोलता है कि मैं पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करता हूं, तो एक साइंटिस्ट बताते हैं कि ये वही बात होगी कि माउंट एवरेस्ट पे खड़ा होकर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं माउंट एवरेस्ट को देख नहीं सकता। माउंट एवरेस्ट पे खड़े हैं और बोल रहे हैं मैं माउंट एवरेस्ट को देख नहीं पा रहा हूं। Saying like that. So पुनर्जन्म is a fact, है ना? But the point is that scientifically it cannot prove it. Modern scientific methods के द्वारा, हाँ cases है, there are so many cases you can interview, you can record, you can say that yes this is fact, but कैसे आत्मा निकलती है और कैसे दूसरे शरीर, whole process of transmigration वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता modern scientific method as of today. So the point is that गीता बताती है कि हमको अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए, because it is getting recorded. Just like ये हमारा जूम का प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं? How many of you know? I don't know, but इस साइड में लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग। तो परमात्मा रिकॉर्ड कर रहे हैं। So think you act, for act. Think before you then सोचो कि जो सोचने जा रहे हो गलत है कि नहीं। बोलने से पहले सोचो कि जो बोलने जा रहे हो एक है, कुछ करने से सोचो कि जो करने जा रहे हो सही गलत है या सही है कि नहीं। गांधी जी के 3 बंदर, मुझे लगता है गांधी जी के साथ गुम हो गए, उनको ढूंढ के लाइए, हैं अपने अपने शहर में ढूंढिए, वो बंदर कहीं आपके शहर में तो नहीं। आजाद होते ही बंदर, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अगर आप उनके बंदर है कि नहीं, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, isn't it? So that is your responsibility. All of you have to understand. तो गीता में बताया गया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और 2nd चैप्टर इस पे बहुत जोर दिया गया इस ज्ञान पे। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि आत्मा अमर है, आत्मा नष्ट नहीं होती है, आपके कर्म भी नष्ट नहीं होते, कर्मों के साथ दूसरे जन्म में जाएंगे। अगर हमने पाप किया उसका दंड मिलेगा, अगर हमने पुण्य किया उसका फल रिवार्ड मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को 3rd लेसन जो भगवद गीता में मिलता है, ये मिलता है कि अपने 2nd चैप्टर में कि अगर अपने जीवन को आप चला रहे हो तो आपको सावधानी से 2 ड्यूटी है आपकी। यू हैव 2 ड्यूटीज, 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटी, 1 ड्यूटी टुवर्ड्स बॉडी एंड 1 ड्यूटी टुवर्ड्स सोल। अभी हम जो भी काम कर रहे हैं 24 घंटे केवल शरीर के लिए कर रहे हैं कि नहीं।
आत्मा के लिए आपने आज तक क्या किया बताइए? एनी ऑन ऑफ यू टेल, 1 घंटा आपने आत्मा के लिए दिया? शरीर के लिए सारा काम करते हैं कि नहीं? आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? एक बूढ़ी औरत थी, लेके आई, तोता को पिंजरे में रख दिया, पिंजरा सोने का था, रोज पिंजरे को, तोते को खाना देना भूल गई, तोता मर गया, पिंजरा चमक रहा है। इसी तरह से हम शरीर को चमका रहे हैं, ये शरीर एक पिंजरा है, लेकिन इसके अंदर जो तोता, जो आत्मा है, वो डिसैटिस्फाइड है, वो खुश नहीं है। उस आत्मा को कैसे संतुष्ट करना है? हम हो जाए तो आप एक मछली को पानी से निकाल दो, तो पिज्जा खिलाओ, उसको नोट डॉलर की बेड बना के उस पर सुलाओ, एयर कंडीशन लगा दो, व्हाट डू यू थिंक? फिश विल फिश बी हैप्पी? मछली खुश रहेगी? नहीं रहेगी। मछली खुश कैसे रहेगी? उसको पानी में बस डाल दो और कुछ मत करो। उसी तरह से गीता कहती है 2nd चैप्टर में कि जब आत्मा जो है उसको जब हम भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान से मिला देते हैं, तो वो अपने आप आनंद में आ जाती है, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर जाती है। इसको कहते हैं योगा, जोड़ने का प्रोसेस। आत्मा जो अभी भगवान को भूल कर अपने को शरीर मानकर नाना प्रकार के पाप कर्म में लिप्त है, गलत कर्म में, उसको ये याद दिलाना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और भगवान के साथ जुड़ो, भगवान के स्वभाव को समझो, उनके अनुसार अपने जीवन को बिताओ। इसी को कहते हैं योग। योगा मतलब ये नहीं कोई एक्सरसाइज और जिम्नास्टिक और कुछ, दैट इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा। गीता में जो योग बताया गया उसका अर्थ ये है कि किस तरह से सोल को सुपर सोल के साथ जोड़ा जाए, उस प्रोसेस को योग बोलते हैं। योग मीन्स ऑलवेज टू पीपल कनेक्टिंग टू थिंग्स, दैट इज दो चीजों को जोड़ना योग। आत्मा वो दो चीज हम लोग हैं और दूसरी परमात्मा, दोनों साथ में। आत्मा जो स्वार्थ में लिप्त हो गई है, इसको जब भगवान से जोड़ दिया जाएगा तो आत्मा जो है वो फिर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करेगी। तो इसी को कहते हैं योगा प्रोसेस। अब इस जोड़ने के कई तरीके हैं। कर्मों से अगर जोड़ते हैं तो कर्म योग, भगवान की भक्ति करके जोड़ते हैं तो भक्ति योग हो जाता है, ज्ञान के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं तो ज्ञान योग हो जाता है। लेकिन जोड़ना बहुत जरूरी है, भगवान होने चाहिए और आत्मा होनी चाहिए, दोनों होने चाहिए, तभी योग प्रोसेस होता है। अदरवाइज योग प्रोसेस इज जस्ट हेल्थ के लिए योगा करना, दैट इज नॉट द गोल ऑफ योगा। तो दोनों ड्यूटी हमारी, अब 2 ड्यूटी बनती है। देखिए, एक ड्यूटी आत्मा के लिए और एक शरीर के लिए। हम जितनी पढ़ाई कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। आत्मा के लिए हमने क्या किया? 1 घंटा भी नहीं दी। तो इसलिए गीता में बताया गया है कि प्रोसेस बताया गया है कि जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान से कनेक्ट करते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, तो फिर हम आत्मा के लिए कर्तव्य करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल आर हियर सिटिंग हियर, ठीक है? आप सबको मैं जो बता रहा हूँ, आप इसे क्या करो? सुन रहे हो। किससे सुन रहे हो? अपने कान से सुन रहे हो। तो ये कान क्या है? ईयर्स आर सेंस। और नाउ यू आर इस कान से आप अभी गीता का ज्ञान न सुन के आप सिनेमा के गीत सुन सकते थे, है कि नहीं? तो सिनेमा के गीत में क्या है? सिनेमा के गीत में शरीरों के खूबसूरती का वर्णन है। शरीर कितना सुंदर है, आंख कितनी सुंदर है, बाल कितने सुंदर हैं। It's all about body. Nothing is about soul. But शास्त्र क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। क्या सुंदर है? जो सत्य है वही सुंदर है कि नहीं? क्यों? सत्य तो बहुत कड़वा लगता है, सुंदर कैसे होगा?
सत्य तो बहुत कड़वा लगता है, सुंदर नहीं लगता हमको। क्यों? क्योंकि सत्य जो है सुंदर इसलिए क्योंकि सत्य, ट्रूथ इज बेनिफिशियल। शिवम, शिवम मतलब बेनिफिशियल। याद रखिए, whatever is truth, that is beneficial and therefore it is beautiful. False doesn't matter how attractive it is and therefore it is ugly. Beautiful face, the moment you come to know that face is cheating, still that face will look ugly, beautiful. कोई बहुत सुंदर रूप है जिसे आप बहुत आसक्त हो और बाद में पता चला कि वो आपसे चीटिंग कर रहा है, क्या वो रूप फिर सुंदर लगेगा? दिखेगा सुंदर? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा सुंदर। क्यों? फेस तो वही है, बिकॉज इट इज नॉट बेनिफिशियल, नॉट हार्मफुल नाउ, therefore it is ugly. People like to kill the face, isn't it? तेजाब फेंक देते हैं, है ना? तेजाब फेंक देंगे जाके, देखो वही सुंदर फेस था, तेजाब फेंक दिया जाके, है कि नहीं भाई? ब्यूटीफुल था तो तेजाब कैसे फेंक दिया? Because somewhere there is problem. So wrong understanding, because of wrong understanding. So therefore very important, सत्य, सत्य क्या है उसको जानना। शरीर देख रहा है, आत्मा को नहीं देख रहा है। आत्मा को देखो। आत्मा को अगर देखना सीख जाएंगे तो सारे जीवों से प्रेम करना सीख जाएंगे, केवल मनुष्य से नहीं। इवन एनिमल्स हैव सोल, दे आल्सो हैव फीलिंग, इमोशंस, है ना? तो एनिमल से भी प्रेम करना। एवरीवन, यू कैन लव एवरीवन इफ यू कैन सी द सोल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन लव गॉड। सो दैट इज द सेकंड की दो ड्यूटी है। तो स्पिरिचुअल ड्यूटीज भी हमें करनी चाहिए। स्पिरिचुअल ड्यूटी, वी आर हियरिंग अबाउट spirituality. That's the first, that's where spiritual duty begins. Spend some time in hearing about spiritual things, है ना? Then practice spirituality, meditation, mantra meditation. We chant Hare Krishna Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this mantra, if you chant very attentively, ध्यान से अगर इसका आप जप करोगे, you see the changes in consciousness. एक व्यक्ति बोला, मेरे से बोला, प्रभु जी मैं तो पहले बहुत मारपीट करता था, जब से ये मंत्र जप कर रहा हूं पता नहीं क्या हो गया, मन ही नहीं करता लड़ाई करने का। So it transforms your consciousness, brings peace, joy in your life. I have seen many people, their consciousness getting transformed, complete transformation. Criminals, murderers, the people do murder, crime, but the moment they come in contact with this Maha Mantra, their heart gets transformed. This is the proof that this knowledge is working. इसलिए गीता के सिद्धांतों को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म होती है। तो स्पिरिचुअल ड्यूटी मतलब do some meditation, take out some time for this, understand that this is important, keep it in your priority list, give some time, allocate some time, isn't it? So this has lot of benefits. तो इसलिए दो ड्यूटी, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल ड्यूटीज। तो मटेरियल ड्यूटी तो आप लोग कर रहे हो अच्छे से, बट अगर आप ध्यान रखो, अगर आप स्पिरिचुअल ड्यूटी अच्छे से करोगे आपकी मटेरियल ड्यूटी भी अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू हैव कैरेक्टर, कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस, अब पढ़ाई करने बैठोगे आपका फोकस अपने आप बनेगा, है कि नहीं? बिकॉज यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, माइंड आपके कंट्रोल में है। अब बोलोगे अब भूल जाओ सारे संसार को, जस्ट फोकस स्टडी, है कि नहीं? माइंड स्टडी पे लगेगा, है कि नहीं? और माइंड 10 जगह अगर आसक्त हो गया है तो स्टडी पे सामने किताब रहेगी, पूरा पेज खत्म हो गया, समझ याद एक भी लाइन नहीं रहा, पढ़ तो लिया, घुसा कुछ भी नहीं दिमाग में। फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। इफ यू वांट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप स्पिरिचुअलिस्ट बनो, मैं बोल रहा हूं इफ यू वांट टू बिकम ए गुड वाइफ और गुड हस्बैंड, then also you have to study Gita, you have to practice spirituality,
Otherwise, you cannot even become good wife and husband. What to speak of monk? If you want to become good IAS officer, you must study and practice Gita in your life. Otherwise, you cannot become IAS officer. You will go in jail after some time. You want to become good chief minister, prime minister, you must study Gita because the principles are so nice. You want to become good scientist, honest scientist, character, must understand Bhagavad Gita. You want to become good activist, must understand Gita. Because nothing happens without controlling your mind and senses, without understanding who you are. संसार को हेल्प करने से पहले समझना है कि मैं कौन हूं, क्यों हेल्प करना है संसार को. भाई सब केमिकल ही है तो हेल्प क्यों करने का. हाँ, so Gita says no, you are not chemical. You all are Satchidananda, you are soul. You should help each other, not physically but spiritually also. आप कोई व्यक्ति डूब रहा है, आप उसके कपड़े को पकड़ के बचा रहे हो, कपड़ा खींच के लेके आ गया, व्यक्ति मर गया. What is it? केवल शरीर को बचाना वही बात है, केवल कपड़े को बचाना. आत्मा को बचाना बहुत जरूरी है डिग्रेडेशन से. आप किसी को कंबल बांट दिए, ठीक है, लेकिन उसके कैरेक्टर को आपने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, उसके विचारों को आपने परिवर्तित नहीं किया, ही इज स्टिल द सेम डेंजरस पर्सन. वैचारिक क्रांति बहुत जरूरी है. केवल मैं आप कंबल बांट रहे हो, भोजन खिला रहे हो, हॉस्पिटल खोल रहे हो, ये तो शरीर के लिए कर रहे हो. आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? आत्मा के लिए आप कुछ नहीं कर रहे. इसलिए क्राइम तो नहीं रुक सकता ना. भोजन कंबल बांटने से थोड़ी ना क्राइम रुक जाएगा. लेकिन जिसके पास कंबल है वो भी क्राइम कर रहा है कि नहीं. तो क्राइम रोकना है, समाज को शांति और प्रेम की तरफ लेके जाना है, तो ज्ञान की बहुत आवश्यकता है. वैचारिक क्रांति बहुत जरूरी है. गीता का ज्ञान यही करता है. अर्जुन को ज्ञान मिला, वो समझ गए नहीं, हमें न्याय के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए बहुत जरूरी है कि जो दुष्ट लोग हैं उनको हमें हटाया जाए. युद्ध बहुत जरूरी है. फाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट देयर इज जस्टिस. समटाइम यू हैव टू किल. कभी कभी शांति के लिए, शांति अगर बोलते भगवान कृष्ण ने तो युद्ध कराया, हमको आप युद्ध करना सिखाएंगे क्या? भाई आप युद्ध से डरते क्यों हो? Honest disharmony is better than dishonest harmony. Try to understand. So better to have honest disharmony. Otherwise, dishonest harmony, just trying to patch up harmony without any principle, without any basis, doesn't work. अगर आपको शांति स्थापित करनी है तो शांति के दुश्मनों को या तो सुधारना पड़ेगा या मारना पड़ेगा. दो ही ऑप्शन है, isn't it? जब तक शांति के दुश्मन मौजूद हैं, आप शांति कैसे स्थापित कर सकते हो बताओ? तो शांति के दुश्मनों को या तो आपको सुधारना पड़ेगा या एलिमिनेट करना पड़ेगा. दो ही ऑप्शन है, तभी शांति आएगी. अगर शांति के दुश्मनों को आप बगल में बिठा के रखोगे और पुलाव खिलाओगे, अब बोलोगे कि शांति आ जाएगी, कभी आएगी? कभी नहीं आएगी. सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप का जहर बढ़ता है, यानी कि सांप जो है शुद्ध आत्मा हो जाएगा, कल से नहीं काटूंगा मैं आपको. नो. इफ यू give poison milk to the snake, the poison increases. It is more dangerous. Yes, we should show mercy. Mercy must be shown, but to whom? कृपा देना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, क्षमा करना चाहिए, लेकिन किसको? दो तरह के लोग होते हैं, एक इनोसेंट होते हैं और एक क्या होते हैं? एंटेगोनिस्ट. जो एंटेगोनिस्ट होते हैं, जिन्होंने ठान रखा है कि मेरे को सुधरना नहीं है, ऐसे लोगों को के ऊपर फॉरगिवनेस का असर नहीं पड़ता जल्दी. इट्स वेरी डिफिकल्ट. यू हैव टू, दैट्स व्हाई दो डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड होम मिनिस्ट्री, पुलिस भी है और टीचर भी है. तो पहले टीचर समझाता है, नहीं समझेगा तो पुलिस डंडे से मारेगा, है कि नहीं? उसका अपना इम्पोर्टेंट रोल है कि नहीं? वो भी जरूरी है.
कुछ लोग हैं जो लात के भूत होते हैं, वो बात से नहीं मानेंगे। ऐसे एलिमेंट्स भी हैं सोसाइटी में, तो उनको लात से ही सुधारना पड़ता है, अदरवाइज दे विल नेवर अंडरस्टैंड। सो रियल जस्टिस इज द व्हेन द पीपल आर, you know, the good people should not be troubled by bad people. For that we have to control bad people, otherwise they will never let go live in peace and harmony. And for that, if force is required, war is required, that we must do that war. If you fear from the war, you can never establish peace. क्योंकि दुष्ट जब समझ जाएगा कि ये व्यक्ति कभी लड़ेगा नहीं, ये शांति ही करता रहेगा, तो आपकी शांति, आपकी अच्छाई का, आपकी ऑनेस्टी का दुरुपयोग करेगा। सोचेगा that he will think that this is your weakness and he will keep exploiting. तो क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कोई सांप है, उसका न विष है, न दांत है, न जहर है, और बोलता हम आपको क्षमा कर देते, ठीक है हम काटेंगे नहीं आपको। Does it make any sense? भाई तू और कर क्या सकता है, तेरे पास ऑप्शन क्या है, न दांत है, न विष है। भाई क्षमा तो वो कर सकता है जिसके पास दांत है, विष है और काट भी सकता है, और वो बोले कि तुमको क्षमा कर रहा हूं, then people will fear, isn't it? So we must have strength to create that fear in the heart of the people who are against justice, who are against peace, who are against love. That every activity is to destroy the peace on the earth. संसार में शांति को नष्ट करने के लिए है। ऐसे लोगों को पनिश करना is very, very important. Otherwise, you see the society where it is going. Good people are not getting justice. लोग रेप करके आराम से जेल में रहते हैं 10 साल तक, है कि नहीं? और जो व्यक्ति कष्ट झेल रहा है उसको ही खींचा जा रहा, the person feels humiliated actually. Keep going in the court. Everything is there, proof is there, everything is there, but he keeps going in the court begging for justice, isn't it? And then 8 साल के बाद डिसाइड होता है नहीं अब जस्टिस करना चाहिए। Why? Delayed justice is no justice. So therefore we must understand that the criminals who are enemy of peace, enemy of love, and enemy of justice must be punished strongly to give a strong message. Otherwise, those who are peaceful, they will also become criminal. We are not setting a good example. So just to दूसरों को क्रिमिनल्स के ऊपर फॉल्स कंपैशन दिखाने के बजाय, है ना, के चक्कर में हम अच्छे लोगों को भी क्या कर रहे हैं, कष्ट में डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए कृष्ण ने कहा अर्जुन को, देखो पहले मैं जाऊंगा हस्तिनापुर, 5 गांव मांगूंगा प्रेम से, शांति से, ठीक है, आधा राज्य नहीं देगा कोई बात नहीं, अधिकार पूरे राज्य पे, ठीक है, पूरे राज्य नहीं देगा, चलो आधा दे दो, आधा भी नहीं देगा, चलो 5 मांगेंगे, 5 भी नहीं देगा, दिया 5 नहीं दिया मीन्स ही इज एग्रेसर, आतताई, उसको पनिशमेंट जरूर। अब आगे बात नहीं बनेगी, बिकॉज़ दिस इज इनजस्टिस। देन मस्ट बी वार। We don't want war, but war is necessary, and we should not teach our youngsters to live in a cozy situation where peace and only peace and only peace and only peace. No, when need arises, we are ready to fight also. We will not fight unnecessarily, but when need arises, we must be ready to fight. That is what Krishna says in Gita. And don't fear of death, Krishna says. Why? Because you are not this body. You are not going to die, Arjun. And आपका यश जुग जुगांतर रहेगा, आपका यश अमर हो जाएगा। आत्मा तो अमर है ही, यश भी अमर हो जाएगा, आपकी कीर्ति अमर हो जाएगी, और जुग जुगांतर तो लोग आपके एग्जाम्पल्स को फॉलो करेंगे कि अर्जुन एक ऐसा लीडर था जिसने
सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो वो करेज हमारे अंदर होना चाहिए। इसको होता है करेज, स्टैंडिंग स्ट्रांगली फॉर समथिंग वेरी राइट। That is called courage. We must have that courage, you know. So thank you so much. We will stop here for question answer session. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for this wonderful, wonderful session. We are really grateful that we got this opportunity to hear your wonderful words of wisdom. So if the audience, if anybody from the audience has any questions, you may drop them all in the chat box. Kindly drop all your questions in the chat box. There's a question, Prabhuji. How to identify if one is a victim of black magic? There are some experts in black magic. If you want, I can suggest some names, you know, and you have to approach them, and they can clearly tell you. No, they are very experts in this field, and they have cure also of all kinds of black magics. No? We must approach experts. Like how to identify that you have a disease? You just go to expert, isn't it, in that field, and the expert will do diagnosis and will let you know. Is that okay? So there are some experts of black magic, tantra, and all these things. No? And they are available. Any other question? There's another question. Yes, Prabhuji. Yeah. There's this question. What happens to our soul after we sleep? Okay. What happens to our soul? He says, see, the soul is always active. That is the problem. There are 3 stages, actually 5 stages of sleep. You know, when you sleep 5 hours, you know, there are 5 stages our sleep goes through. One is a stage called deep sleep. The deep sleep stage, you don't have any activity. That time your mind is sleeping. But there is a situation when called dream stage. Like if you sleep more than 5 hours or 4.5 hours, then you will certainly dream. There is a guarantee. But after 4 hours, you cannot sleep deeply. There is scientific research on this. So after 4.5 hours, you have to dream. So that time our soul is active, actively interacting with the subtle body and gross body. Our gross body sleeps, then subtle body is active during dream time. But when we are in deep sleep, then subtle body is also sleeping, taking rest. Sleeping means just wear and tear repair करने के लिए उसको time दिया जाता है, heal के लिए. That's the purpose of sleep, to give you time to heal. That's why many problems, diseases, you just sleep properly, it automatically body will heal that. The soul, whole system is like that. But the soul is awake always. But soul, even if it is awake, it cannot dance. Why? Because then it needs the support of subtle body and gross body to dance. So although soul is awake, but soul never sleeps. But because body is sleeping, therefore soul also cannot do any action because the gross things is sleeping. So that is the reason. So soul is always active, soul never sleeps.
Thank you, Prabhuji. We have another question, and that says, you said, Prabhuji, that we people have memory of past lives. But according to Hindu mythology, we have 84 lakh yoni or janams. Then how come these special people remember their past lives, even in their animal bodies or after so many lives of animal body? It is just like a storage system, like some data you keep on your desktop, and some data अपने हार्ड डिस्क पे लेके साइड में रख देते हैं या क्लाउड में रखते हैं, जब जरूरत पड़ता है तब निकाला जाता है. It's not directly on your memory. So similarly, most of the data of our lives are there, kept in a different places, and those will be cleared. Those data will be deleted when that is usually उसका punishment जब मिल जाता है or reward, then that data will be relieved. But it is there. So some people remember, that is the proof that it is there. But how animal, yeah, some animal they remember their past life. Even animals they remember. Many dogs you see, they behave very saintly. I have seen one cow, I was in Vrindavan, I saw one cow. Daily at the right time, the cow comes in front of the Lord Vigraha, deity. And आरती के समय गाय आएगी, वहां पे खड़ा होकर एकदम भगवान को देखेगी और 1 घंटे खड़े रहेगी, वहीं पे देखती रहेगी. आरती जैसे ही बंद होगा वो चली जाएगी. Not only cow, there are many dogs also I have seen in Vrindavan. There are monkeys also like that. So how they are? Because they can relate something from their past life. So that's why they're so, their pattern is like that. So yes, even animals they can remember, but not everyone. It's certainly some special impression. Like कोई बच्चा अगर पिछले जन्म में अगर कुछ गोली मार दिया है, तो जनरली सिर पे अगर गोली लगी तो इस जन्म में भी वहां पे निशान रहते हैं. अगला जन्म मिलता है तो यू विल सी द मार्क ऑन दैट प्लेस. एंड उसका अभी आगरा में एक बच्चे का केस हुआ था, उसमें रिसर्च हुआ था, तो पता चला कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पिछले जन्म की निकाली गई. उस बच्चे ने बताया कि पिछले जन्म में उसको गोली मारी गई थी, और कहाँ गोली मारी गई थी, तो जहाँ पे उसके निशान थे, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई पिछले जन्म की, तो पता चला कि उसी स्थान पर उसको गोली मारी गई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार. So these memories are there. Sometimes it comes in our physical body also. Reflects past life memory. If something is very strong impression, like some people have very deep fear of certain water or water phobia or something like height पे जाके डरना. So that kind of things are there because जब पिछले जन्म में उसने पानी में डूब के मरा होगा तो उसको बहुत water phobia होगा, like that. So you all can read. There are a lot of literature on reincarnation available. You all want detail, you can read that. But this is a fact. Yes. Thank you, Prabhuji. There's another question that why don't they believe in God, even though we have Bhagavad Gita? The simple reason is that if you believe in God, you have to stop your nonsense. If people don't want, they don't like, because God is everywhere. So he will see me doing wrong. And second reason is that there are so many people who are doing nonsense on the name of God. So because of them, God is, has become a villain. So people say, ऐसा भगवान से बढ़िया नहीं रहे हम, गॉड के नाम पे इतनी किलिंग हो रही है, better remove this God, then killing will. Some good people, they are rejecting God because of this, because people are killing people on the name of God. So people are become atheists. Better इसे तो बढ़िया हम atheist बन जाएं, कम से कम किसी को मारेंगे नहीं. So these are two reasons, two categories of people are there. And third category is that people do not know at all. They never do research on God. So they reject blindly. If you do research, you read books, you come to the people who are following God, then they can train you how to experience
God. So they don't do some research. That's why they reject. They think that, you know, मुझे नहीं लगता है कि भगवान है. मुझे भी नहीं लगता था. यहाँ से आवाज जाएगी. उससे आ रहा है? क्या आ गया? Yes. Yes. You were not audible, Prabhuji. Yeah. Now I am. Your voice is breaking, Prabhuji. We can't hear you properly. Okay. Now? Now it's better, Prabhuji. Now it's better. Okay, I can hear you clearly. Okay, Prabhuji. So there's one last question for today. That does bhakti affect our karma? Not at all. Yes, it affects. It makes your karma better. It makes you a better person with better karma. Yes, certainly. You know, the bhakti affects your consciousness. And you do all the karma with consciousness. So naturally, when consciousness improves, then your karma also improves, isn't it? Every action comes, thought comes, isn't it? So when thought improves, then automatically karma improves. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much for answering all the questions. Thank you so much for sparing your precious time for all of us today. And we're looking forward to organizing more sessions with you, Prabhuji. Thank you so much. To the audience, we will be having our next session on 5th of February. And the speaker will be His Holiness Bhakti Anugraha Janardhan Swami Maharaj. Maharajji has done his bachelor's from Canada. He's the current executive board member of ISKCON Vrindavan. He's been preaching the message of Bhagavad Gita in Canada, USA, Russia, Philippines, and many other parts of the world. So make sure you join even earlier on 5th of February. Thank you, everyone. Thank you again for joining us. Hare Krishna. हरे कृष्णा. एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है. जैसा कि आज प्रभु जी ने बताया हम सबको चैंटिंग के बारे में, हरे कृष्णा चैंटिंग के बारे में. सो जब आपके 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम आपके लिए एक वर्कशॉप करेंगे, जिस वर्कशॉप का नाम होगा मेडिटेशन मेड इजी वर्कशॉप, जिसमें हम आपको सिखाएंगे मेडिटेशन कैसे किया जाता है, मेडिटेशन के साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और मेडिटेशन का मतलब क्या होता है. इसकी बहुत ही अच्छी वर्कशॉप होगी आप सबके लिए. तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आप सबको धीमे धीमे हर चीज सिखाई जाएगी. हमारे पास प्रभु जी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि ISKCON से कैसे जुड़ा जाए, हम कैसे ISKCON के मेंबर बन सकते हैं, ISKCON से जुड़ सकते हैं. तो आप सबके लिए जवाब यही है कंबाइंड वे में कि आप सब हमारे इन कोर्सेज से जुड़े रहेंगे धीमे धीमे, तो आप सब हमारे ISKCON के मेंबर बनेंगे. आप सबको हम धीमे धीमे बताएंगे आप कैसे हमसे जुड़े रह करके हमारे मेंबर बन सकते हैं, ISKCON के साथ मेंबर बन सकते हैं. तो बस करना क्या है, अपने आप को आप कोर्सेज से जोड़ करके रखिए, रेगुलर क्लासेस में आइए, जो भी चीजें सीखते हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए और धीमे धीमे आप देखेंगे कई सारी चीजें आप सीख जाएंगे. सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी का. और प्रभु जी हमारे इस गीतामृतम कोर्स में 3 से 4 चैप्टर्स लेंगे, तो हम बार बार संग लेंगे प्रभु जी का. आपके जो भी क्वेश्चंस इस बार नहीं आंसर हो पाए उनके हम और आंसर्स आपको धीमे धीमे करेंगे. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा.